ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013। ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਸਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਟ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਏ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, share capital refers to the amount that a company can raise by issue of shares। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।
लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की गल करिए इन्हां कोले राइट्स नहीं होंदे। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ਨੂੰ जिन्ना भी कंपनी ਨੂੰ प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी ਨੂੰ किसी भी ईयर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स ਨੂੰ डिविडेंड जो होगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इन्हां ਨੂੰ लॉस ये भी है कि इन्हां ਨੂੰ अगर प्रॉफिट होया नहीं फर्म ਨੂੰ प्रॉफिट नहीं होया दैन इन्हां ਨੂੰ घट मिल जाएगा, इन्हां ਨੂੰ घट मिलूगा। इत्थे इन्हां ਨੂੰ थोड़ा जिहा लॉस पैंदा है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्हां ਨੂੰ फिक्सड रेट ऑफ डिविडेंड मिलना ही मिलना। ठीक है, इन्हां ਨੂੰ प्रॉफिट का नहीं मिलता लेकिन इन्हां ਨੂੰ अगर प्रॉफिट हो जाए कंपनी ਨੂੰ ज़्यादा उस टाइम इन्हां ਨੂੰ ज़्यादा मिलेगा डिविडेंड। ये है बेसिक डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दी टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड कैपिटल जिसनों नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। नॉमिनल कैपिटल ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल की होंदी है यही की है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होंदी है जो कंपनी इशू कर सकती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है अपनी लाइफ टाइम दे विच, जिन्ना टाइम कंपनी हैगी उस लाइफ टाइम तक किन्ने कंपनी शेयर्स किन्ने इशू कर सकती है वह होंदी है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसनों रजिस्टर्ड भी कह दिंदे जो MOE दे विच रजिस्टर्ड होंदी है, जिन्ने नाल कंपनी रजिस्टर्ड होंदी है शेयर कैपिटल दे नाल वो होंदी है ऑथराइज्ड कैपिटल। सैकेंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल है इशूड शेयर कैपिटल। हुण सपोज कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 20 लाख शेयर कैपिटल के नाल रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, कंपनी इदा नहीं करती कि सारी की सारी कैपिटल एक टाइम दे विच ही इशू कर दे, जिन्नी उसनूं जरूरत होंदी है उस दे अकॉर्डिंग कंपनी की है शेयर्स इशू कर देंदी है। जिन्नी कैपिटल कंपनी नूं रिक्वायर्ड होंदी है टाइम टू टाइम वो करती रहती है। मे बी वो एक टाइम दे विच भी कर सकती है बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी, जदों उसनूं जरूरत है उस टाइम वो कर सकती है। हुण इशूड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल सेम भी हो सकती है कि कोई भी केस दे विच अगर सपोज 20 लाख दे विचों कंपनी ने 15 लाख दे शेयर्स 15 लाख दे शेयर्स इशू करते। ठीक है, वो की हो जाएगी इशूड शेयर कैपिटल। $15 लाख डिवाइड की में है 15,000 शेयर्स 100 ईच, मतलब 100 का शेयर पैंदा है, एक शेयर 100 का। ठीक है, 20,000 शेयर्स 100 का एक है। सो 15,000 शेयर्स इशू करते जो कि पब्लिक मार्केट दे विचों कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकती है। 15,000 शेयर्स 20,000 दे विचों 20,000 शेयर्स दे विचों 15,000 कंपनी ने इशू करते जो कि पब्लिकली है, पब्लिक उसनूं परचेज कर सकती है। वो की हो जाती है अपनी इशूड शेयर कैपिटल। नैक्सट इज सबसक्राइब्ड शेयर कैपिटल। हुण कंपनी ने 15,000 के शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, अगर पब्लिक 15,000 दे फुली शेयर्स सबसक्राइब कर ले, मतलब परचेज कर ले, दैन केस ओके है। सम टाइम अंडर सबसक्रिप्शन भी होंदी है,
कंपनी ने 15,000 ਦੇ परचेज ਕੀਤੇ ਹੈ, लेकिन कंपनी ਦੇ शेयर सारे ਦੇ ਸਾਰੇ नहीं ਵਿਕਦੇ। सपोज 14,000 शेयर्स लोगों ने परचेज कर लिए, ठीक है। ये की होंगी है अंडर सबसक्रिप्शन, कि पूरी की पूरी सबसक्रिप्शन नहीं हुई। अगर कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशनस आ जान, मतलब कंपनी ने 15,000 के शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन कंपनी को 60 या 18 सपोज 18,000 के शेयर्स के लिए सबसक्रिप्शन आ जाए कि असी परचेज करना है। हुण एक ही हो जू केस ओवर सबसक्रिप्शन वाला, लेकिन कंपनी ने 15,000 दे ही शेयर्स इशू किए हैं, सो कंपनी 18,000 के शेयर्स किमें दे दूगी, ठीक है ना। 18,000 शेयर्स क्यों दे दूगी जो कंपनी ने तो 15,000 के शेयर किए हैं। इसलिए इसनों आप अगे जाके समझांगे कंपनी किस तरीके नाल 15,000 शेयर डिवाइड करेगी पब्लिक दे विच, उसनों आप प्रो डाटा सिस्टम भी कहने हैं। उस दे अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करने होंगे शेयर्स, ठीक है। एक होंगे सबसक्रिप्शन शेयर कैपिटल, जिन्नी पब्लिक ने परचेज कर ली, जिन्नी पब्लिक रेडी होगी, ठीक है। नैक्सट अपने को आ जाती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स मैं दसिया कि 20,000 शेयर ने 100 का ईच है, ठीक है। हुण कंपनी जो शेयर्स इशू करती है 100 का एक है, हुण 100 रुपीज़ इकट्ठे नहीं मंगाती, उसनों डिवाइड किते हुंदे है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सैकेंड कॉल, ठीक है। इन्हों पार्ट्स के विच डिवाइड कर देंदी है, उसके अकॉर्डिंग मंगवाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी जो पब्लिक सबसक्राइब करती है ना, कि इन्ने शेयर्स लिए लोगों ने कहता कि असी लैने हैं। एप्लीकेशन मनी तो सबसक्रिप्शन के नाल ही आती है। उस दे विचों समटाइम ओवर सबसक्रिप्शन होंदी है, अंडर सबसक्रिप्शन होंदी है। किन्ने लोगों को अलॉट करते शेयर्स, कंपनी ने किन्ने लोगों को अलॉट करते, उस तो बाद अलॉटमेंट मनी मंगवाती है। फिर फर्स्ट कॉल, सैकेंड कॉल, यह डिपेंड करता है किन्नियां कॉल्स होन, ठीक है। सो 100 का 100 एक बार दे विच नहीं मंगाएगी, इसलिए जिन्नी मनी कंपनी ने कॉल करती, जिन्नी इन्हां दे विचों किन्नी मनी कंपनी ने मंगवा ली, एप्लीकेशन मंगवा ली, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है। जो मंगवा ली उसनों की कहांगे कॉल्ड अप, जिस लिए कॉल करती कंपनी ने कि यह मनी सानू दे जो, वो की होंदी है कॉल्ड अप। नैक्सट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल की है, वो पार्ट होंदा है कॉल्ड अप कैपिटल का। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट है जो एक्चुअल दे विच पब्लिक पे कर जाती है कंपनी नू जो एक्चुअल दे विच पब्लिक पे कर दिंदी है, उसनों की कहते हैं पेड अप कैपिटल। जो कंपनी ने कॉल की होंदी है, सपोज 100 का शेयर सीगा, 100 दे विचों कंपनी ने 10 रुपीज़ एप्लीकेशन नाल मंगवा ले, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट नाल मंगवा ले, ठीक है, और 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल। टोटल हो गए 50 रुपीज़ कॉल करती, 50 रुपीज़ दे दो। हजे सैकेंड फाइनल हजे मंगवानी पई है, 50 रुपीज़ हजे मंगवाने पे है, लेकिन 50 कहते, ठीक है। 50 लिए कॉल करती कि 50 रुपये कंपनी नू दे जो, ये की है कॉल्ड अप मनी। हुण इस दे विचों एक्चुअल दे विच पब्लिक 50 दी 50 पे करेगी जां घट पे करेगी, ठीक है। जिन्ने पे करेगी, सपोज जो पब्लिक है, पब्लिक दे विचों कोई पर्सन सीगा राम, उसने 10 रुपीज़ पे नहीं किते, ठीक है, सॉरी 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल वो पे करने दे लिए अनेबल रहा। सो उसने कितनी पे करती, एप्लीकेशन भी पे करती, अलॉटमेंट भी करती, 30 रुपीज़ उसने पे करते,
लेकिन फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की, ठीक है। एक ही है पेड अप कैपिटल, जिन्नी पे कर दे पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਨਕੋਲਡ। part of the subscribed capital which is still remaining uncalled, मतलब कि जो कंपनी ने हजे कोल्ड नहीं किया, यह कंपनी बचा के रखती है फॉर दी बाइंडिंग अप। जो कंपनी बंद होंदी है उस टाइम जो भी कंपनी ने लोगों का पे करना होंदा है वो इस दे विचों पे कर दिंदी है, इसलिए कंपनी कुछ पार्ट समटाइम कोल नहीं करती, वो की होंदा रिजर्व करके रखती है, वो क्योंकि रिजर्व कैपिटल। इत्थे अपने टाइप्स खत्म होंदे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।